So today we will be talking about Brechtian technique. Okay. सर संडे को भेज भेज दीजिएगा ना प्लीज। Uh, yes, I will try. Yeah, man, I will try and बस maybe I will share it. Yes, by one day. एक दो तीन फिल्म का भी आ गया ना तो टेक्सचर में समझ जाऊंगा ना, तो फिर मैं कम से कम 5 6 7 फिल्म देख के चला जाऊंगा। Yes. Okay. चलेगा. I will do it. You can see the screen. Yes, sir. Okay. So today's session is all about epic theater by Bertolt Brecht and Brechtian technique of acting and his work, his practice, and all about it. So, who all know about Brecht? बताइए मुझे थोड़ा आप लोग who all knows about Brecht? कौन है? आपने नाम सुना है? कुछ पता है? नहीं पता है? I guess he was a playwriter, Yes, and and उसके कुछ plays है काफी famous है, Caucasian Chalk Circle, Mother Courage and Her Children, okay. and he is from uh, Pol Poland, I guess, and उसने शायद ये acting Anyone classes else? भी दिए। Anyone else? Anyone else want to come up with something? There is nothing right or wrong. You can just simply come up with something that you want to share. Okay, fine. Chalo, we'll start. Brecht was basically a German Marxist playwright, poet, and director. It's very important to understand that his ideology for all of his work, all over his life, was mostly Marxian. Fine. Brecht was born on 10th of February 1898, Augsburg, Germany, and died on 14th August 1956 in Berlin. Brief factual information first that it's a Marxist playwright, poet, director, theorist. Brecht pioneered, जो हमने टाइटल में भी बात किया, epic theater, and epic theater was used as a vehicle for social critique, like social commentary के तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया है सबसे ज्यादा. Brecht always believed that theater should engage the intellect, not just emotions, prompting the audience to act on social issues, not merely witness them. Okay. Now, when we are talking about like theater should engage the intellect, not just emotion, and prompting the audience to act on social issues, you will see it is a very first attempt where entertainment was not seen only as an entertainment. Otherwise, just until Brecht, most of the performance, like almost all of the performance, were always seen as a medium of entertainment. So their resultant output was also uh, conceived in a way that you were supposed to go, sit back, relax, enjoy, and just go home and sleep. But Brecht said that no, theater is not only that. Theater is a much more powerful tool. And ये जो पूरा social critic है, it's not only about emotion, not only about it's about engaging the intellect also.
This is all making a huge difference in the contemporary theater practice. ओके, अब ये कॉन्टेम्पररी थिएटर प्रैक्टिस में क्या हो रहा है? जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही बात चल रही है कि एंगेजिंग द इंटेलेक्ट, उसमें सिर्फ इंटेलेक्ट की बात कर तो रहा है, पर उसमें मेजर शिफ्ट क्या हो रहा है? मेजर शिफ्ट ये हो रहा है कि जो आदमी पहले थिएटर में जाके बहुत लेड बैक होके कोई नाटक देखता था या फिल्म देखता था, कुछ भी करता था, नाउ ही इज ऑन द एज. He wanted audience to always engage consciously. That is the meaning of the intellect. इंटेलेक्ट का मीनिंग ये नहीं है कि मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशन में इन्वॉल्व है. वो इमोशन के साथ साथ इंटेलेक्ट के साथ इन्वॉल्व है. मतलब ही इज यूजिंग हिज कॉग्निटिव स्किल्स, हिज रैशनैलिटी, हिज लॉजिकलिटी एंड ऑल दिस थिंग्स. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमने हमारे इनिशियल थिएटर डेज के टाइम पे सुना था कि अगर स्तानिस्लावस्की और ब्रेक्स्ट नाटक देखने जाएंगे तो स्तानिस्लावस्की का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं नाटक देखने जाऊंगा, मैं अपने सीट पे बैठूंगा, मैं एक सिगरेट जलाऊंगा हाथ में और नाटक देखते देखते वो सिगरेट कब जलते जलते मेरी उंगली पे आके लगेगी मुझे पता ही नहीं चलेगा, और मुझे ऐसे होगा कि अरे उंगली जल गई, सिगरेट का गरम उंगली पे लगा. ब्रेक्स कह रहा है कि ऐसा नाटक होना ही नहीं चाहिए. नाटक कैसा होना चाहिए? मैं जाऊंगा, मैं सिगरेट हाथ में लूंगा, मैं बैठूंगा, मैं नाटक देखूंगा, और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि मेरे हाथ में सिगरेट है. आई विल स्मोक इट, आई विल एंजॉय द सिगरेट एज वेल एज द प्ले. एंजॉयमेंट का फैक्टर, एंटरटेनमेंट का फैक्टर ब्रेस्ट कॉम्प्लीटली डिनाई नहीं कर रहा है. वो बस ये कह रहा है कि नाटक ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खो ना जाए, रादर सचेत होके, बीइंग अवेयर, यू शुड बी एबल टू एंजॉय इट. ओके. Disclaimer, I don't smoke. I'm not like promoting smoking at all. It's just an example to make you understand. Fine. So yes, Brecht, famous German playwright and poet, started writing political poetry. Brecht के poetry पढ़िए, बहुत अच्छे हैं. Books are available. I think online PDFs are also very much available. And plays at an early age about social issues. He was branded a troublemaker at school and got expelled for writing anti-war poems. How ironical. Brecht became interested in Karl Marx's theories of socialism. ब्रेक्स्ट को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, पर्सनली मेरे बहुत करीबी टेक्निक्स है ब्रेक्स्टियन टेक्निक. ब्रेक्स्टियन टेक्निक आप अभी जब आगे आगे डिस्कस करेंगे आप नोटिस करेंगे कि it might sound very easy because the tools, the devices, the things that he is talking about, वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है करना, because people see it as a disruptive technique to the performance, है ना. स्तानिस्लावस्की और चेकव जो अब तक हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से अंदर जाने की बात कर रहे हैं, और ज्यादा इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं, ब्रेक्स्टियन टेक्निक ऊपर ऊपर सुपरफिशियली देखने से ऐसा लगता है कि डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, कि इतना मत घुसो, जो मैं सिगरेट वाला एग्जांपल दे रहा था, दो हाइपोथेटिकल, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग देयर. बट जब आपको सच में समझ में आएगा ब्रेक्स्ट इन डिटेल, आपको समझ में आएगा कि ब्रेक्स्टियन टेक्निक करने के लिए तो स्तानिस्लावस्की और चेकोवियन इन्वॉल्वमेंट से भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए. इसका मतलब ये, जब मैं बोल रहा हूँ कि उनसे भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मतलब इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी चाहिए. नॉट ओनली ऑडियंस को, एक्टर को उससे ज्यादा, काफी काफी ज्यादा. जब हम आगे बात करेंगे वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो मैं कहने का मतलब ये था कि अगर आपको ब्रेक्स्ट बहुत अच्छे से फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे भी समझना है, थोड़ा सा मार्क्सिज्म के बारे में जान लीजिए कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली ऑल अबाउट. Obviously he is promoting socialism, कम्युनिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स. पर ओवरऑल एक बार मार्क्स के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है. जो बहुत ऊपरी ऊपरी चीजें हैं उस पे अमल ना करे कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑल जो सारी जगह सुनाई देता है, व्हाट इज मार्क्सिज्म एंड ऑल, वो नहीं. उससे परे थोड़ा सा मार्क्सिज्म को जानने की कोशिश करे कि व्हाई ब्रेक्स्ट एज ए परफॉर्मेंस आर्टिस्ट और परफॉर्मर, डायरेक्टर, actor, playwright, poet was interested in the theory of Karl Marx. Okay.
Marxist theory were about social justice and were critical of capitalism. One of the major things. It is about questioning who has power, money, and who goes without. The disparity between the distribution of resources. It's about industrialization and how this affect workers and the power structures of society. ये बहुत ऊपरी बातें हैं मार्क्सिज्म के, ठीक है ना? ये ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, पर मैं वही चाह रहा हूं कि आप उससे आगे भी थोड़ा जाए, ठीक है? तो जब हमको दिख रहा है कि इतना कुछ समझने के बाद, मतलब मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस होने के बाद, ब्रेक्स्ट अपनी टेक्निक धीरे धीरे, अपनी प्रैक्टिस, अपनी थियरी उसको डेवलप कर रहे हैं, हमको ये भी दिखेगा कि he kind of, not only kind of, he definitely revolutionized modern theater. ब्रेक्सटियन टेक्निक आने के बाद जो मॉडर्न थिएटर प्रैक्टिस है, ब्रेक्सटिक के बारे में बात करने के टाइम हम बहुत बार ऐसा होगा कि हम एक्टर या एक्टिंग के बदले थिएटर थिएटर मेंशन करके बात करें, क्योंकि ब्रेक्स्ट वाज मेजरली ए डायरेक्टर, सो ही वाज मोर फोकस्ड on the final outcome of the performance rather than the individuality. Obviously, मैं हम जब एक्टिंग के nitty-gritties के बारे में बात करेंगे तब हम एक्टर बोल के भी रेफर करेंगे, पर जब जब मैं बोल रहा हूँ कि ही रेवोल्यूशनाइज मॉडर्न थिएटर, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि टू रेवोल्यूशनाइज मॉडर्न थिएटर और टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ ड्रास्टिक चेंज इनटू द प्रैक्टिस, उनको कितने सारे पुराने कन्वेंशन को तोड़ना पड़ा। अब जब कन्वेंशन तोड़ने की बात आ रही है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग ए परफॉर्मेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट द एक्टर परफॉर्मिंग इट। सो जब रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, अगर थिएटर रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, तो उसके साथ साथ उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड और इंक्लूडेड सारे कंपोनेंट्स भी रेवोल्यूशनाइज हो रहे हैं, मतलब उनको होना ही पड़ रहा है, ठीक है? ब्रेक्स्ट आते ही सबसे पहले जो किया कि नेचुरलिज्म को रिजेक्ट कर दिया। कल परसों हमने बात किया था नेचुरलिज्म और रियलिज्म, इन सब के बारे में। सबसे पहले नेचुरलिज्म को डिनाई कर दिया एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म को भी उन्होंने काफी हद तक डिनाई किया। एंड उन्होंने क्या बोला कि किस तरीके का होना चाहिए? उन्होंने बोला कि एक डायडेक्टिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। डायडेक्टिक का मतलब कौन बता सकता है? बताइए। डायडेक्टिक क्या है? थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट आप कर ही सकते हैं, नॉट ए बिग डील। तो डायलेक्ट मतलब तो किसी क्षेत्र की जो बोली होती डायडेक्टिक है। नहीं, डायडेक्टिक। अच्छा। यस। Didactic is basically designed to teach people something, especially a moral lesson. मतलब there has to be a moral or teaching quotient of it. ठीक है, मतलब आपको कुछ बताना होगा। ब्रिक्स का सबसे मेजर यही है। एज आपको, आप लोगों को मोर और लेस पता ही होगा कि जब भी हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, मतलब इट्स वेरी मच पॉलिटिकल, ठीक है? ए पॉलिटिकल मामला है ही नहीं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ए पॉलिटिकल करके कुछ होता ही नहीं है। एवरीथिंग एग्जिस्ट अराउंड अस इज ऑल पॉलिटिकल, आइदर हियर और देयर, बट इट हैज टू बी समवेयर, नथिंग इन बिटवीन। बट ब्रेक्स भी वही कह रहा है कि पॉलिटिकल थिएटर, जो नॉन पॉलिटिकल थिएटर करके, जो नॉन पॉलिटिकल परफॉर्मेंस करके, कि क्राफ्टिली और वेरी इंटेलेक्चुअली और स्मार्टली पॉलिटिक्स को अवॉइड करके सिर्फ एंटरटेनमेंट फैक्टर को दिमाग में रखते हुए बनाया जा रहा है, उस तरीके के काम को वो कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कैन यू नेम समथिंग ए पॉलिटिकल? This is completely in context of the Brechtian theory we are talking about. Okay. Can you name an art that is apolitical or any piece of art that is apolitical? बात करिए थोड़ा। Shagota, you want to say something? सर आप ये पूछ रहे हैं कि किसी पीस ऑफ आर्ट को पॉलिटिकल बनाया जा सकता है?
नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपकी व्यूज क्या है. डू यू थिंक दैट आर्ट should be political or can be political, or it can be apolitical, or it should be apolitical? ओके, मतलब मेरे व्यूज तो मैं कहूंगी कि पॉलिटिकल कंटेंट तो बनता है, बट आई गेस कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो न्यूट्रल व्यू पॉइंट से बना हो। मतलब apolitical हो. हाँ। तो आप कोई apolitical आर्टिस्ट के बारे में बता सकते हैं that is apolitical? सर अभी तो नहीं ध्यान आ रहा। ओके. मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे पूछने का मकसद ये है कि जब आप अपने आंसर्स फ्रेम करेंगे ना, तब आप अपने आंसर्स के सपोर्ट में ऐसे फैक्चुअल एग्जांपल भी दिया करें अपने बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए, कि आपने जो लिखा है उसके ऊपर आपकी पूरी बिलीफ है, तो ऐसे एग्जांपल भी दिया करें. मान लीजिए कि किसी कॉन्टेक्स्ट में यू आर राइटिंग अबाउट इट दैट आई थिंक दैट आर्ट शुड बी presented from a neutral point of view, from a neutral perspective, and should not get anywhere around the politics. There may be some political performance, but I personally think that this is this. ये आपका व्यू हो गया, बट ये व्यू और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा इफ यू पुट अप सम एग्जांपल्स इन इट. की I personally think that this particular piece of art in this field, I think, is apolitical. The creator has been vocally apolitical all over his life or something like that. तो आपके जो भी क्रिटिकल व्यूज हैं, आइडियोलॉजीज है नहीं है, जो भी है, वॉट एवर इट इज, एटलीस्ट ट्राई टू सपोर्ट देम विद प्रॉपर फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड एनीथिंग. ओके, समथिंग. यस प्रशांत. एक्चुअली सर, आई डिड नॉट हैव द पार्टिकुलर आंसर टू इट, बट मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे थे कोई भी चीज अब ये पॉलिटिकल हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप किसी चीज के अगेंस्ट में जा रहे हो तो आप भी पॉलिटिकल हो जाओगे. आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? मैं मेरा पर्सनल बिलीफ है कि दुनिया में एपॉलिटिकल करके कुछ नहीं होता है. जब आप एपॉलिटिकल होने का डिसाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए साइड. सो इफ यू आर इन एनी साइड, यू आर पॉलिटिकल. मेरे कहने का सीधा मतलब हो. प्रशांत जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज 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 डोंट सेंड मी चैट जीपीटी आंसर्स. चैट जीपीटी से ओके सर. आंसर भेज के फीडबैक मांगने का, इट्स एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस. ओके सर, वैसे मैंने आपको वहां पे भी माफी मांगी थी, मैं वापस से आपसे माफी मांग रहा हूँ. नहीं नहीं, मैं don't आगे say से sorry नहीं to me. करूँगा. I'm not angry or anything. I'm just saying that there is no point to it. Why should I give a feedback to ChatGPT thing? There is a point, na? हाँ. ओके, हाँ. पहले तो जी जी, पहले तो मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ सर वापस से. हाँ, बोलिए. हेलो सर, बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ. कोई भी मूवी बनी है जो एक सेक्युलर चीज को प्रमोट करती है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट करती है, और कोई चीज है जो उसके अगेंस्ट बनती है, क्या आप इस वाले पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल ऐसी सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं किसी भी सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ. मैंने बस ये कहा कि ब्रेक्स जैसे पॉलिटिकल थिएटर की बात कर रहा है, बिकॉज द पॉलिटिकल वर्ड came into the works and theories of Brecht. I'm just saying that Brecht believed that everything is political. क्योंकि whenever you choose to be apolitical, being political मतलब क्या है? You pick up a side. आपके एक कोई व्यूज होते हैं, आपके एक आइडियोलॉजी होते हैं, और आप उसके साथ खड़े होते हैं अपनी जिंदगी भर के लिए. देन दैट्स योर पॉलिटिक्स. आप उसके लिए तर्क करते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए जिंदगी में कुछ तो करते ही है. ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू further develop the ideologies in your life. So Brecht is saying that if you are taking a side, then it's political. But if you're not taking any side, that is also a side, and that is also political. So there is nothing called apolitical. That's it. Anji. सर आप प्लीज एक एग्जांपल ले सकके समझाएंगे? ना. ओके. अगर कोई अच्छी एग्जांपल मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा. करेंटली लेट्स गो प्रोसीड फर्दर. हाँ, आगे चलते हैं. अभी इस मोमेंट पे कोई एग्जांपल नहीं है मेरे मन में. और टॉप ऑफ द माइंड में बता दो, जैसे जो टोनी कक्कर का गाना था, कोका कोला तू, बहुत लूजली देखेंगे तो इट माइट साउंड लाइक ए वेरी फन आइटम सॉन्ग और समथिंग लाइक दैट.
but deep inside, if you go into the lyrics and start analyzing it, you will get to see that it's not merely a song. These are not like merely fun lyrics. It is a lot of I don't know whether I should say depth or anything, but yes, if you analyze it, you will get to understand a lot of things about the society and how the society is perceiving the song and celebrating it. More or less, this is one of the example. Okay. So, epic theater came about a time when melodrama, realism, naturalism were popular as theater form. Melodrama, जब Stanislavski was practicing already, Chekhov was practicing, they already discarded melodrama, but melodrama was like never vanished from the practice. It was there, more or less. Parallel practice चल ही रहा था. And then Chekhov started realism, naturalism, and then जब Chekhov, sorry, Stanislavski started it, and then when Chekhov also went more towards realism, naturalism in a different way, he kind of accepted melodrama to some extent. Because जब हम परसों बात कर रहे थे that the exaggerated movement जो आप करके एक साइकी को समझने की कोशिश करते हैं somewhere that contributes or connects directly to the melodrama part of it. ठीक है. These naturalistic styles tried to recreate real life on stage. Okay. The idea was for the audience to believe the story and characters in the play were real. Basically, theater aimed to be escapism. This is one other important part for you to understand, that escapism. For so long, art को एक तरीके से एक escape के जरिए के तौर पे देखा गया. It was a way of escape from life. कि दिन भर के काम करने के बाद थकान मिटाने के लिए आप आते हैं और आप कोई एक कंटेंट कंज्यूम करते हैं और फिर वो कंटेंट में आप प्योरली एंटरटेनमेंट फैक्टर ढूंढते हैं. और दुनिया भी उस वक्त पे काफी लंबे वक्त तक एक एंटरटेनमेंट फैक्टर ही प्रोवाइड कर रही थी. ब्रेक्स ने आके जब उसको बदला कि नहीं, एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक कॉन्शियस टीचिंग मोमेंट भी अगर क्रिएट करेंगे, एक डायडेक्टिक प्रैक्टिस अगर प्रीच कर सकते हैं, देन दैट वुड बी मच 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 मोर beneficial for the society. Brecht's main objective was basically to transform the audience from passive observers into active critics of the society. ठीक है, ये भी एक चीज है जो आप लोगों को लिखने के टाइम पे समझ में आना चाहिए. That his main objective was to transform the audience from passive observers into active critics of society. There is a very popular quote by Brecht. He is saying that art is not a mirror held up to reality, but a hammer with which to shape it. वो कह रहे हैं कि अगर हम जो बताया जाता है कि आर्ट इज द मिरर ऑफ लाइफ, कि कोई भी काम करते हो, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी ऐसे बोलते हैं, आर्ट इज कोई भी आर्ट प्रैक्टिस को बोलते हैं कि जो समाज में हो रहा है वही उसमें दिखता है. ठीक है. अब ब्रेक्स्ट कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो तुम्हें अलग से दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो मुझे दिख ही रहा है एज इट इज. जो अभी तक स्टैनिस्लावस्की और चेकोव और बाकी आगे भी बहुत लोग बोलेंगे, ये जो एक एडवोकेसी है कि एज रियल एज पॉसिबल, एज लाइफ लाइक एज पॉसिबल, इस पूरे नोशन को ही ब्रेक्स नकार रहा है ये बोल के कि एज क्लोज जाने की क्या जरूरत है, आई एम लिविंग ए लाइफ दैट इज एग्जैक्टली लाइक लाइफ. तो मैं एक और लाइफ लाइक चीज क्यों देखना चाहूंगा. मतलब इट्स लाइक इफ यू कैन have a horse in real life, why would you like to have a stuffed horse that is almost like horse? क्योंकि अगर आपके पास रियल लाइफ में एक्सेसिबिलिटी है तो आप रियल लाइफ में एक्सेसिबिलिटी को एंजॉय करोगे. पर हाँ, एंटरटेनमेंट फैक्टर उसमें था और हम उसको कंज्यूम कर रहे थे. तो उसी जगह पे ब्रेक्स बोल रहे हैं कि आर्ट को इस तरीके से डील ना ही करे, रादर use it as a hammer. Hammer is a metaphor obviously, which to shape it. So you have to make something striking, जो ऑडियंस को स्ट्राइक करेगा, उसके इंटेलेक्ट को हिट करेगा, और एंड देन इन हिज कॉन्शियस लेवल
he will able to decide or make a decision or will be able to bring a change. Might not be very prominent change, but at least he will think about the change. अब तक हम जहां बात कर रहे थे, हम देखेंगे कि नोइंगली और अनोइंगली एक्टिंग के नाम पे दे वेर अप्रोचिंग द सबकॉन्शियस. जैसे एक्टर अपने सबकॉन्शियस को अप्रोच कर रहा था, उसी तरीके से ऑडियंस भी परफॉर्मेंस वाज मेड इन ए वे, एक्टर्स यूज्ड टू परफॉर्म इन ए वे कि ऑडियंस का भी सबकॉन्शियस पे ही जाके परफॉर्मेंस हिट करता था. ठीक है, ये जो एक्टर के सबकॉन्शियस से निकला हुआ चीज ऑडियंस के सबकॉन्शियस को हिट करता है, इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंटोनिन आर्तो ने थिएटर ऑफ क्रुएल्टी में. जब हम शायद हम क्रुएल्टी इतना डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं देखूंगा कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बता दूं. इंटरेस्टिंग थिंग, आप कभी पढ़िएगा व्हाट इज थिएटर ऑफ क्रुएल्टी. तो सबकॉन्शियस से लेके, क्योंकि सबकॉन्शियस में इफेक्ट करता है, उसी तरीके से एक्टर जब कॉन्शियसली परफॉर्म करता है, वो ऑडियंस के भी कॉन्शियस लेवल पे ही इफेक्ट करता है. और ब्रेक्स कह रहे हैं कि कॉन्शियस लेवल पे ही इफेक्ट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे करेगा तभी तो इधर जो रैशनैलिटी है वो किक इन करेगा और वो एनालाइज करेगा कि व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. अगर मैं खो गया तो फिर सबकॉन्शियस में चला जाएगा. और हमें पता है कि सबकॉन्शियस में सच कॉग्निटिव स्किल्स नहीं होते हैं, रैशनैलिटी नहीं होती है, और हम उसको अपने मर्जी से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव फ्री एक्सेस टू द सबकॉन्शियसनेस. जैसे कॉन्शियसनेस लेवल पे हमारे पास एक फ्री एट विल एक्सेस है, हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे वट एवर आई एम डूइंग नाउ, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम कॉन्शियस लेवल. तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि कॉन्शियस को ही अप्रोच करो और कॉन्शियसनेस से ही एक्टिंग को भी अप्रोच करो. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा जो मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे, जो 1920 और 1930s के जर्मनी है. ठीक है, जब भी जैसे रशिया में बात कर रहे थे, पहली बार हम रशिया से निकल के जर्मनी में आए. जब स्टानिस्लावस्की अपने काम डेवलप कर रहे थे, जब चेकोव अपने काम डेवलप कर रहे थे, तब रशिया की जो हालत थी, मतलब वो जिस ईयर में, जिस साल में अपना काम शुरू कर रहे थे या पीक पे थे, उस दौरान जो रशिया की सामाजिक हालत थी, आर्थिक हालत थी, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से जर्मनी में जब ब्रेक्स काम कर रहे थे, जर्मनी का सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रैक्टिस, बिकॉज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जो हम पिछले दिन भी बात किए थे, दिस सोशल कॉन्स्ट्रक्ट इज शेपिंग देयर प्रैक्टिस. प्रोबेबली अगर इफ ब्रेक्स were to be in Russia, maybe this alienation effect might never come into effect. Brecht might never feel the need to create something different. He might never feel the difference कि हमको ऑडियंस के इंटेलेक्ट को भी स्ट्राइक करना चाहिए, एक डायडेक्टिक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की जरूरत है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 1920s to 30s जर्मनी है, दिस वाज इन रेस्पॉन्स टू फैशिज्म एंड नेशनलिज्म. ठीक है, बिकॉज टाइम फ्रेम से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन जर्मनी. द सोशियो इकोनॉमिक कोलैप्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, एंड द ग्रोइंग फेलियर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम्स, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ द अर्ली फेजेस ऑफ कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म. और इंडस्ट्रियलिज्म खैर शुरू तो हो गया था, पर एक पॉइंट के बाद इट स्टार्टेड कोलैप्सिंग, because it was not completely based, it mostly based on ki how the rich can get richer and the poor becomes poorer, and it was happening at a drastic pace that it collapsed in many of the countries. ठीक है, तो at that point, influenced by Marxist philosophy, Brecht wanted theater to provoke rational understanding, not just emotional catharsis. This is another important word for you, catharsis. तो आपको अभी समझ में आया कि हाउ थिएटर एम्ड टू बी एस्केपिज्म एंड ब्रेक्ट डिडंट वांट इट टू बी एन एस्केपिज्म. द ऑडियंस कुड फॉरगेट अबाउट देयर लाइव्स फॉर अ व्हाइल. ठीक है, थोड़ा सा हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर. ये जो ट्रक डाइवर्सन,
ऑल दिस ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, जो ट्रेवलर्स होते हैं, रात रात भर बस चलाते हैं। आजकल तो खैर थोड़ा सा एवरीथिंग इज सो मच लुक्स लाइक कॉर्पोरेट दैट थिंग्स आर लाइक लूजिंग देयर ट्रू नेचर टू एवरीथिंग। बट आप लोगों को आई थिंक समझ में आएगा कि दिस ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स हैज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लेलिस्ट दे लिसन टू। आप देखेंगे दोज लिस्ट मोस्टली इज नॉट ruled by Arijit Singh or KK. They listen to some other kind of music, melodious obviously, but they have this thing that they connects to. Now it all comes from the social construct and in response to it, कि how it is affecting. ये जो लोग सुनते हैं गाना, ये जो लोग देखते हैं फिल्में, ये ऑल दीज एंग्री यंग मैन ऑफ द 70s 80s 90s, all these things that started coming up, the hero, the stardom, all of these things came into our life for a reason. Manufacturing those things was a part of it, but people accepting it was the major effect of this whole social construct that was happening at that point, the social phenomenon, whatever was going on. सो ये जो एस्केपिज्म है कि मैं दिन भर काम करने के बाद, दिन भर नौकरी करने के बाद वी विल गो एंड आई विल जस्ट वॉच अमिताभ बच्चन की दीवार, आई विल सी अमिताभ बच्चन डूइंग शहनशाह, विल सी कि संजय दत्त के खलनायक। तो इस तरीके की चीजें गिव्स अस एन एस्केपिज्म. It tries to let ourselves loose on a psychological level for some time. It gives us a point of catharsis. Catharsis क्या है? हिंदी में विरेचन कहा जाता है. Catharsis is basically मैं लिख देता हूँ. It's basically purgation of emotion. ठीक है? जो एक ओवरवेलमिंगनेस से जनरेट होता है. जैसे अभी मैं बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, पंखे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, आई एम वेरी कंफर्टेबल. तो ये कंफर्टेबिलिटी में कैथारसिस कैनॉट इनिशिएटेड. इसमें कैथारसिस हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत पॉसिबल नहीं है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में शायद हो भी सकता है, बट इन जनरल केसेस इट्स नॉट पॉसिबल. टू कैथारसिस टू हैपन, फॉर कैथारसिस टू हैपन, इट हैज टू बी एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन. ठीक है, एक इमोशनली हाइटेंड सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे जाके एक पॉइंट पे एक आउटबर्स्ट होगा इमोशन का, जहां पे you will feel like कि हल्का हुआ है. That you have expressed a lot. ये जो all these films of 90s 80s where people are rooting for Amitabh Bachchan so much, in the climax people used to throw coins, notes, currencies to the screen of the theater, because they feel that it's not Amitabh Bachchan winning, it's not the hero winning, it's the people, it's the audience who are winning, because they are fighting instead of them. So this kind of psychological things are happening. अब ब्रेक्स्ट का यही कहना है कि if you agree to this notion कि that's how the performance works in theater at that point, Brecht is saying that if catharsis happen, तो आप लाइट फील करेंगे. अगर आप लाइट फील करेंगे, तो ये जो आपके कॉन्शियसनेस का डिसीजन था टू फाइट अगेंस्ट द इविल, ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा. आपके अंदर एनफ एंथो बचेगा ही नहीं. यू वोंट बी फील एंथुसियास्टिक एनफ टू कंटिन्यू द फाइटिंग. यू फील दैट माय फाइट इज डन. One example can be given like from our life only, that whenever you feel sad, something is bothering you, if you don't cry about it, if you don't rant about it, if you don't vent it out to someone, you see that it's keep on piling up, like bottling up, bottling up, bottling up. And if you like cry out loud or vent out and rant out to someone, then you feel light कि हो गया, मतलब मुझे बोलना था काफी देर, जो बोलना था मैंने बोल दिया. जो कभी कभी आपको किसी को गाली देने का मन करती है, to swear to someone, and आपको लगता है कि the social structure doesn't allow you to do that, आप मन में दे देते हैं, and that is also gives a kind of a satisfaction.
तो आपका क्या होता है, परगेशन हो जाता है कि द इमोशन दैट वाज बिल्डिंग अप इनसाइड वाज रिलीज्ड इन सम वे। ब्रेक्स्ट कह रहे हैं कि रियल लाइफ को छोड़ दीजिए, एटलीस्ट ड्यूरिंग परफॉर्मेंस इफ द कैथारसिस हैपेंस, जो लाइटनेस है, जो रिलैक्सेशन है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो ग्रेटिफिकेशन है, दैट इज रूइनिंग द पर्पस ऑफ द परफॉर्मेंस। If Amitabh Bachchan, if any of the hero is doing something heroic, fighting against the evil and coming out as victorious, Brecht is saying that the audience should take a message home that you should also start the fight and you will also come out as victorious. But that never happened. Like, almost never happened. There are a few here and there cases maybe where it happened, but almost never happened. People used to see it, they used to enjoy it, they used to clap it, they used to shout at it, and then they used to go home and sleep. Drunkards used to go home and drink, beat their wife, sleep. The wife also on the very next day start working, watch a film if like permitted or get scope or so to access a film, and then again getting beating happens again and in the night. The drunk husband comes home and beats the wife. So this is the deadly loop that humans are stuck into. Brecht is saying that break it through performance, break it through theater, break it through how you are approaching it. That don't let them get to the catharsis. अब catharsis को कैसे रखोगे? It's an organic process. गला थोड़ी दबा देंगे? No, obviously not. So he found out a lot of techniques in performance that will appear that कि audience के तौर पे as an audience you will never will be able to reach to catharsis, but the social commentary, the issues, or whatever is shown in the screen or theater stage is so strong that it stays with you. You keep on thinking about, keep on thinking about, keep on thinking about it. He is not saying that it will ensure a change, it will definitely bring a change, you will definitely take an action, you are supposed to take an action, then only it's considered successful. He is not claiming anything. He is just saying that let the audience go with it. If it helps, it helps. If it doesn't, then also at least he is aware that he is in this mess or he is not in the mess, whatever. All the 80s and 90s films, 70s films, आप देखेंगे, it's all about good against evil. And 99.99% the good wins. Definitely the good wins. And all of these films combined together couldn't like make the people courageous enough to um, do a fight against the evil. Never, because of catharsis. Because it never reached up to that point. The moment you come out of the theater, you are like full with your pizza, popcorn, burger, and the satisfaction ki Amitabh Bachchan won. The hero won the fight. The hero got the heroine. They lived happily ever after. That is the feeling that Brecht is definitely not talking about. There is this. Let's discover this rough difference between uh, Aristotelian theater and Brechtian theater. अभी ब्रेक्सटियन थिएटर को हम एपिक थिएटर बोल ही रहे हैं, जो आपको अभी तक में समझ में आ गया है, ठीक है। अभी हम आगे जाके एपिक थिएटर पे थोड़ी देर बात करेंगे। एरिस्टोटल कौन है पता है? आप लोगों ने सुना ही होगा, हिंदी में काफी जगह अरस्तु बोल के रेफर किया जाता है उनको। सो ये जो एरिस्टोटलियन थिएटर है, इट्स ऑल अबाउट ग्रीक थिएटर। ही वाज अ थियरिस्ट, ही वाज अ फिलोसोफर। तो उन्होंने जो चीजें नोट डाउन की है, उन्होंने जो ग्रीक थिएटर का प्रैक्टिस देखा है, उस वक्त के काम देखे हैं, उन्होंने थिएटर को जिस तरीके से परखा है, दैट ऑलवेज रिमेन्ड ए फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी थिएटर, क्योंकि वहीं से थिएटर की प्रैक्टिस धीरे धीरे एक सिविलाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड एंड आर्काइव्ड तरीके से हमको मिलता है, ठीक है। तो एरिस्टोटलियन थिएटर इज काइंड ऑफ अ फाउंडेशन टू एवरीथिंग एंड एवरीवन वाज लाइक बिल्डिंग ऑन इट। तो उस तरीके से देखेंगे तो ब्रेक्स्ट ने आके एक बहुत बड़ा लीप लाया। कैसा?
This whole concept of catharsis, it's Aristotelian. Aristotle first said catharsis. ठीक है. और एपिक थिएटर में ब्रेक्स क्या बोलते हैं हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, अभी बस मैं बता देता हूँ. एपिक थिएटर में ब्रेक्स बात करते हैं एलियनेशन की. एलियनेशन मतलब इट्स अ डिस्टेंसिंग थिंग. एरिस्टोटलियन थिएटर में बात करते हैं क्या, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. मैजिक इफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये तो हमने हमेशा ही बात किया कि एवरी एक्टिंग जो प्रिटेंस है उस प्रिटेंस का ही एक बुकिश नोमेनक्लेचर है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. कि ये जो मैं यकीन नहीं कर रहा हूं, कि आप मुझे अभी देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सर टीचर नहीं है. कैसे, ये तो ऐसे ही कैसे बैठे हैं, कैसे भी बात कर रहे हैं, मतलब ही इज नॉट लुकिंग लाइक टीचर, वी आर नॉट फीलिंग लाइक दैट इज अ टीचर. तो ये डिसबिलीफ है जो आपका हक है कि अगर मैं आई एम नॉट अपियरिंग लाइक अ टीचर देन यू माइट नॉट थिंक ऑफ मी एज अ टीचर. बट द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए की टू थिएटर. कि आप जानते हैं कि अंदर प्रिटेंस है, अंदर फॉल्सिफिकेशन है, अंदर पूरा का पूरा झूठ ही है. Like if I am able to do a character of a teacher, then you have to believe that he's a teacher. आप नाटक में मान लेते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान इज विजय दीनानाथ चौहान, इट्स नॉट अमिताभ बच्चन एनीमोर बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. क्योंकि अगर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं है, चाहे वो कितना ही विजय दीनानाथ चौहान कर ले, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि वो विजय दीनानाथ चौहान है ना. और एक और उधर ही कॉन्ट्रास्ट में ब्रेक्स क्या बोल रहे हैं, ब्रेक्स बोल रहे हैं कि एक्सपोजर ऑफ थिएट्रिकल इल्यूजन. ठीक है. एरिस्टोटल बता रहा है कि छुपाओ, क्योंकि जैसे एग्जांपल देता हूं. नॉर्मली एक टीचर कैसा होता है कि शर्ट टक इन करके आएगा, शूज पहन के आएगा. नॉर्मली आजकल जैसे टीचर प्रोफेसर्स होते हैं. अगर ये कैसा है, तो अगर मैं टीचर का किरदार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मैं जब आऊंगा आई एम एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट वेयर दोज सिमिलर अपैरल्स, कॉस्ट्यूम्स. हाँ, क्योंकि दिस विल हेल्प फॉर योर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. सारा काम आप ही थोड़ी करेंगे, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर मुझे भी लेनी पड़ेगी. सो ये जो ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम, लाइट, ये सब, दीज आर ऑल इवेंचुअली हेल्पिंग फॉर यू टू होल्ड ऑन टू योर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. कि ये जो आपने तय किया है कि भाई ये डिसबिलीफ को हटाओ फिलहाल के लिए, जो भी है सब बिलीव करने शुरू कर दो. उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि आई एम गोइंग फॉर द एपल्स, आई एम गोइंग फॉर द लाइट्स, आई एम गोइंग फॉर द सेट्स, आई एम गोइंग फॉर द सेटिंग, आई एम गोइंग फॉर ऑल द डिजाइन जो आपको बिलीव करने में मदद करेगा कि मैं टीचर ही हूं. अब इसमें टीचर का एक मेन एलिमेंट क्या है. ठीक. अभी हम बहुत डिस्कशन पे नहीं जाते. अगर बात करते हैं कि मेन एलिमेंट है कि अगर मैं हाथ में एक मार्कर और एक डस्टर हुआ, मेरे पॉकेट में एक पेन हुआ, एंड मेरे हाथ में एक रजिस्टर या नोट्स नोटबुक कुछ भी हुआ, एंड आई एम कमिंग टू ए रूम, देन मे बी इट कैन बी एज्यूम दैट आई एम ए टीचर. मतलब मेजर जो इंडिकेशन है टीचर के, वो सारी चीजें मेरे पास हैं. पर अगर मैं बारमूडा पे आ गया तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ फिर भी टीचर है ही. पर मैं आप लोगों को पहले ही दिन बोला था कि आप जब भी किसी चीज को समझेंगे उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ समझिए कि वो किस वक्त पे आ रहा है, कब आ रहा है, और समझने के लिए उसको उसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्रोच करिए. कि अगर मैं बारमूडा के साथ आया तो शायद आपका सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का वर्ड बहुत स्ट्रांग हुआ एज एन ऑडियंस, तो आप मान लेंगे कि हाँ भाई ये टीचर है. बट देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल क्वेश्चन कि अगर टीचर है तो बारमूडा पहन के क्यों आया है. तो एरिस्टोटल कहता है कि ये जो इल्यूजन है एपरल्स का, लाइट का, सेट का, वो रखो, क्योंकि उससे क्या होगा, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ स्ट्रांग होगा ऑडियंस के पार्ट पे, और वो हमको चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ द कंप्लीट इमर्शन, कि ऑडियंस एकदम इन्वॉल्व हो जाए. उधर ही ब्रेक्स्ट बोल रहा है एक्सपोजर ऑफ थिएट्रिकल इल्यूजन, कि जहां जहां इल्यूजन है, इल्यूजन को ब्रेक कर दो, दिखा दो क्या हो रहा है. लाइक इट्स लाइक आप लोगों ने देखा है पहले एक शो आता था AXN में, जहां पे एक आदमी मास्क पहन के सारे मैजिक ट्रिक्स एक्सपोज कर देता था, रिवील कर देता था कि कैसे कुछ भी हो रहा है. तो ब्रेक्स्ट इज द दैट पर्सन जो बोल रहा है कि सब कुछ एक्सपोज कर दो.
मैजिक करो भी और उसके बाद एक्सपोज भी करो, ठीक है। और एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि सिर्फ मैजिक करो, अगर एक्सपोज कर दिया, अगर इल्यूशन से लोगों ने देख ही लिया तो फिर वो इल्यूशन कैसा। और एक जो एरिस्टोटल बोल रहा है दैट इज द पैसिव ऑडियंस। पैसिव ऑडियंस क्या? पैसिव ऑडियंस जो हमने एकदम शुरुआत में सिगरेट वाला एग्जांपल दिया था, दैट समवन इज सिटिंग एंड watching a performance and cigar or cigarette in a hand, and after a point the cigar burns the finger, पैसिव हो जाता है, देयर इज नो पार्टिसिपेशन, देखते 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 वो खो गया, कहीं पे चला गया है। परफॉर्मेंस भी उसके मन में चल सकता है, परफॉर्मेंस से ट्रिगर किया हुआ कोई मेमोरी उसके मन में चल सकता है, इट कुड बी एनीथिंग और ए लॉट ऑफ थिंग्स, फाइन। वहां पे दिस इज द पैसिव ऑडियंस, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इट शुड बी एक्टिव ऑडियंस, पर दिस इज कॉल्ड पैसिव ऑडियंस, जो खो गया है, कि देखते 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 कभी कभी आप खो जाते हैं, दैट इज द पैसिविटी ऑफ इट, दैट this has taken you somewhere and now you are there and not here. उधर ब्रेक्स्ट बोल रहे हैं कि एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑडियंस, एक्टिव के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑडियंस, मतलब वो जो देख रहा है उस पे सोचने के बाद आफ्टर थॉट थिंकिंग अबाउट इट ही कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेट करने की शक्ति चाहिए किसी भी चीज देखने के टाइम पे, कोई भी परफॉर्मेंस देखने के टाइम पे, अगर इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू योर कॉन्टेम्पलेशन एबिलिटी देन यू आर डूइंग ए ब्रेक्सटियन थिंग। द लास्ट एरिस्टोटल कह रहा है कि कॉन्टिन्यूटी, लीनियर प्लॉट, मतलब कहानी ऐसा हो जहां पे कोई ब्रेक ना हो, इस तरीके का। यही आगे जाके आप बात करेंगे एलियनेशन वगैरह में, कि एक कॉन्टिन्यूटी रहे। कॉन्टिन्यूटी क्यों रहे? अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक किया, अगर उसको तोड़ दिया, वहां से निकल के आ गए, लीनियर प्लॉट टूट गया, तो फिर क्या होगा? पैसिव ऑडियंस एक्टिव बन जाएगा, खो जाएगा ना। जैसे वो हम देखते हैं, वो बहुत सारे सीन में सोच रहा होता है और कोई आके पकड़ता है और ऐसे हो जाता है कि अरे क्या हुआ, वो चस्का टूट जाता है। तो वो नहीं करना है। पैसिव ऑडियंस को पैसिव रखने के लिए कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे ब्रेक्स्ट इज सेइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट, कि एपिसोडिक स्ट्रक्चर रखो, इंटरप्शन रखो एंड ऑल दिस। ये जो 5 पॉइंट अभी मैंने बात किया ना, ये 5 पॉइंट कायदे से मोर और लेस पूरा ब्रेक्सटियन पॉइंट बता देता है, बट ऑब्वियसली हम और डिटेल में निटिग्रिटीज के बारे में बात करेंगे। अभी तक जितना बात किया उसमें कुछ सवाल? हाँ है तो हाँ बोले, नहीं है तो ना बोले। यस, सर मुझे कंफर्म करना था कि जो मैं समझ रही हूँ वो सही है या नहीं, तो हाँ मैं जी बोलिए। आपको बताऊं मैं क्या समझी हूँ। यस प्लीज। जैसे आपने 80s की फिल्मों का एग्जांपल दिया, तो मैं उसको कंपेयर करूंगी 50 60 से। तो काइंड ऑफ उसमें थोड़ा सा लाइक ओवर ओवर होता था एक्टिंग के पर्सपेक्टिव में, कि हीरो जैसे एक अननेचुरल थिंग कर रहा है, कि जैसे 5 6 बंदे एक साथ उठा दिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो काइंड ऑफ ब्रेक में भी हमें कुछ हल्का सा वो अगर हमें करना है तो कुछ ओवर करना है, ताकि ऑडियंस को ओवर बंदा करो ऐसा नहीं बोल रहा है, ओवर करो ऐसा नहीं बोल रहा है, अभी तक कहीं पे नहीं बोला है कि ओवर करो। वो रियलिज्म को नकार रहा है, क्योंकि रियलिज्म आपको पैसिव ऑडियंस बनाने के लिए उठ पड़ के लगा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि पैसिव ऑडियंस मत बनाओ, मेलो ड्रामा ही करो, ऐसा नहीं बोल रहा है। अच्छा। अभी जब हम एक्टिंग पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेक्स्ट ट्रूथ के बारे में भी बात करता है, पर उसका ट्रूथ कभी भी तुमको पैसिव बनने नहीं देगा। और ये जो ओवर ओवर करते हैं 50 60 के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है? अभी हम जर्मनी के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम रशिया के बारे में बात कर रहे थे, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। बिकॉज उस वक्त जब फिल्म नई नई शुरू हुई थी, मतलब पॉपुलर होना या ज़्यादा फिल्में बनना, कमर्शियल तौर पे ऐसी चीज़ें बनना, उस वक्त पे ज़्यादातर जो फिल्म एक्टर्स थे, कंपनीज थे, वो आते कहाँ से थे? कॉमर्शियल थिएटर ग्रुप्स, जो पारसी थिएटर है। पारसी थिएटर के बारे में आप लोगों को कितना पता है मुझे नहीं पता, बट पारसी थिएटर इज वन ऑफ द कॉमर्शियल इंडियन थिएटर फॉर्म which based on loud acting, based on only loud acting.
बहुत ज्यादा लाउड. सो ऑल दोज ट्रेंड वहां से लेके फिल्म में शिफ्ट हुआ. तो इन द इनिशियल डेज फिल्म मेकिंग वाज लाइक दैट. और कुछ मैडम? नहीं सर. ओके, एनीवन एल्स? हेलो सर. हेलो सर. हाँ जी. मैं सांची की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट की जो थ्योरी है वो कह रहे कंटिन्यूटी ब्रेक करो और फोर्थ वॉल होती है उस पे आ जाओ, यानी कि जो आर्टिस्ट है सीधा उनसे बात करने लग जाए. क्या आप इसके बारे में ही तो होता है ये जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट की जो थ्योरी है, ये वो यही तो है ना सर? हाँ, पर वहां तक अभी तक हम पहुंचे नहीं बस. यही वही ना, है. फोर्थ वॉल ब्रेक करना, कंटिन्यूटी ब्रेक करना, राइट? हाँ, वही है. अच्छा जी हम जी. अभी तक वहां पहुंचे नहीं, बस उतना ही. सर, इस बीच आपने दो टर्म इस्तेमाल किए थे, मैं यस. उन टर्म को इस्तेमाल करना चाहता हूँ. एक इस्तेमाल किया था आपने कैथारसिस, और दूसरा था परगेशन ऑफ इमोशन. कैथारसिस का मतलब परगेशन ऑफ इमोशन है. ये दो अलग अलग चीज नहीं है. ओके, इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं को रिलीज कर देना. यस. ओके, बस एक कंफर्म कर रहा था मैं. यस. यस. कैथारसिस का मतलब है परगेशन ऑफ इमोशन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. यस. एनीवन एल्स? एनीथिंग? I'm taking a quick 2 minute break. Okay. Okay, I'm back. Huh? Start कर रहे हैं. Fine. Everyone is here. Everyone is here, na? सर. Started. यस Yes. सर. Okay. Okay. So basically, theater aimed to be an escapism, and the audience could forget about their lives for a while. This has been already discussed. And audience have a tendency to not think. Brecht hated this. And he saw it as a huge waste of an audience. The potential of the audience, he saw it as a waste to it. He wanted people to question and challenge, not simply accept and enjoy. In the 1920s, Brecht created a new form of theater designed to make the audience question and think about what they were watching. He called it epic theater. दिस इज व्हाट एपिक थिएटर इज ऑल अबाउट. ये पूरे इसके थ्रू जो एक थिएटर ब्रेक्स ने अपने लिए अपने प्रैक्टिस के लिए बनाया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एपिक थिएटर. ठीक है. नाउ ये जो कोर टर्म है जो आप देख रहे हैं, सो हाउ डिड ब्रेक्स्ट मेक द ऑडियंस स्टेप बैक एंड व्यू द मैसेज रादर देन द स्पेक्टेकल, कि आप खो ना जाए. और ये जो अभी तक बात कर रहे थे टू अचीव ऑल दिस थिंग्स दैट ब्रेक्स्ट वांट टू अचीव, वो किस तरीके से रहे? व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट टू इट? इट्स कॉल्ड एलियनेशन इफेक्ट और वारफ्रेमडंग इफेक्ट. ठीक है. ये एक जर्मन टर्म है, इसको आप याद कर लीजिए. इतना खटपट शब्द आपको याद रहेगा. मतलब अगर आपके जहन में बैठ जाए तो अच्छी बात है, जहन में नहीं बैठ रहा तो सिंपली एक बार याद कर लीजिए. मतलब अगर आप लिखें इसको तो बराबर लिखें. हाँ, सही सही लिखें. अगर सही सही नहीं लिख सकते तो आई वुड सजेस्ट कि ना लिखें, एलियनेशन ही लिखें. ठीक है. ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में मार्क्स मना गवाए. एलियनेशन इफेक्ट, दोनों का मतलब सेम ही है. ये जर्मन टर्म है, ये इंग्लिश टर्म है. ठीक है. एलियन मतलब अनजान, एलियनेशन मतलब अनजान होने की जो प्रक्रिया है. ठीक है. एलियनेशन मतलब एक डिस्टेंस से देखना, जो पहचान की चीजें हैं उसको भी एक अनजान नजर से देखना और उसको समझने की कोशिश करना. ठीक है. Wolfram's effect was used to direct the audience's attention to something new. This was done by getting the scene. अच्छा, ये हम लाइंस बाद में पढ़ लेंगे. तो ये जो एलियनेशन इफेक्ट है, और इसको आप बहुत आसान भाषा में समझने के लिए डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. और ये जो वर्फमडंग इफेक्ट है, इसका एकदम लिटरल मीनिंग अगर आपको समझना हो, दैट इज मेक स्ट्रेंज, जो मैं बता रहा था कि अनजान होना. ठीक है. इसका मेन गोल क्या है? टू प्रिवेंट द ऑडियंस फ्रॉम बिकम इमोशनली एब्जॉर्ब. ठीक है. एंड व्हाट इज एक्टर इज डूइंग इन इट? टू प्रेजेंट द कैरेक्टर एज इफ ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम आउटसाइड. वो जो थर्ड पार्टी
ऑब्जर्वेशन है। थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो मैं बात कर रहा था कि आप करिए 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 कैरेक्टर को समझने के लिए, ब्रेक्स्ट wanted to say that you should do it in the performance, during the performance, and that's how alienation is gonna take effect. This was done by getting the scene started and then doing something unexpected. When the rhythm, now we are getting into the confusing part. Okay, sit belt, बांध के बैठ जाइए. When the rhythm is interrupted, the audience stops getting lost in the emotion, story, and characters, and they are able to start to think and question. It's like a slap in the face with a wet fish. It wakes us up. The idea with performance defect was to constantly remind the audience that they were in a theater watching a play. These techniques break the illusion of drama. We do not get lost in the story or the characters. काफी तरीके से आप इस डिस्टेंसिंग को अचीव कर सकते हैं. ब्रेक्स बोल रहे हैं कि सीन, when the scene starts, you do a jerk stop. Okay, do something unexpected that your character is not supposed to do, and like while achieving an intense scene where the audience is getting involved and suddenly you break the rhythm and come out of it, and then obviously you resume it also, but you come out of it. And sometimes ये प्रशांत जी जो आप बता रहे थे that this is the fourth one thing I am talking about. Yes, all these things are about this technique to attend the distancing effect, that you distance yourself and then you suddenly start talking to the audience, and the audience realizes that okay, this is no illusion, that this person that is talking and me as an audience are not different, we are all same. And along with this, they get lost in emotion, story, and characters. They're able to start to think and question. Brecht has ulterior motive that audience should be able to start to think and question. But again, with time, it has been seen that only doing a distancing like on a randomized distancing, say, this cannot be achieved all the time. Like at any point, if you like do this petty distancing effect in your performance or in your acting, this is not gonna get achieved. The audience won't start think and ask questions. No, they are not gonna do that, because obviously they won't get involved to it, but it might irritate the audience also. So ये जो distancing है, this needs to be crafted very very well. यहाँ पे आता है एक्टर की आर्टिस्ट्री, डायरेक्टर का एक्सेलेंस, that how craftfully you have to do it कि अल्टीरियर जो मोटिव है वो अचीव हो ही हो. You have to make sure that it happens. ठीक है. How it is done? एक तो है directly addressing the audience, speaking stage directions allowed. This is one of the thing. Again, ये this might look funny to you at this point, but आपको you have to think about it in a contextual way with the period in mind कि कब ये हो रहा है. तो क्या बोल रहे हैं कि one is directly talking to the audience, that is the breaking the fourth wall thing. Another one is speaking stage directions allowed. So जैसे होते हैं, अगर अपने नाटक पढ़े होंगे तो you might have noticed that it says that कि भाग के घर से निकल गई और वो सोफे से उठ के दाएं तरफ मेज पे रखे हुए पेन उठा के हाथ में घुमाने लगी. ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स, अब ना मान लीजिए कि एक बहुत इंटेंस सीन है, आधे उधर अगर आपने पढ़ा होगा, या कोई भी एक फैमिली ड्राइंग रूम सीन ले लीजिए जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में बात चल रही है. Wife teacher है and the husband are having a conversation about that how women working is disrupting the family dynamics. So the woman should stop working and leave the job of a teacher. So suddenly the woman stands up and goes to the table and picks up the pen and then start ऐसे करती है, और एक पॉइंट पे मतलब इट्स अ सीन बिल्डिंग अप, मतलब एक इंटेंसिटी बढ़ रहा है और सडनली वो औरत एकदम से नॉर्मल अपने सेल्फ में आ जाती है, एक्टर सेल्फ में आ जाती है, एंड देन स्टार्ट सेइंग दैट कि नाउ
सावित्री goes to the kitchen and makes tea और बोलती है उधर जाती है और चाय बनाती है. Completely breaks the illusion. The purpose is, or everyone watching, to get them out of the intense emotions of the scene and rather focus on the issue that what is happening actually. That why the heck this person is asking his wife to leave the job, to quit the job, and why he thinks that women working is gonna disrupt the dynamics of the family. Uh, if you are about to be get involved and get lost in the intense emotions of the dialogues and the characters, then you might not be able to think clearly what is the actual issue here. So this is what Brecht wanted to ensure. And then another one major popular technique was switching between roles. So the male goes to the female character, the female goes to the male character, or two female characters switching between roles, two male characters switching between roles. This kind of things happens. So that the kind of love that you develop for particular body, मतलब मैं body इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक्टर को तो पसंद नहीं करते, you always love the character, so you don't get the chance to build up a static liking for the character's body कि यही कर रहा है तो देखने में अच्छा लग रहा है एंड ऑल. ठीक है. And the last, not last, but another one is the disruptive narrating flow with commentary. कि बीच में ही कमेंट्री चालू हो जाते हैं कि दिस सीन इज हैपनिंग दिस सेम सीन. एग्जांपल के रख लेते इसको कि जहाँ पे झगड़ा चालू है, द वाइफ इज ट्राइंग टू सपोर्ट हर लॉजिक, द मैन इज ट्राइंग टू come up with his own kind of logic where he thinks that the women should not be working, and suddenly द बेबी गर्ल, जिसके वजह से शायद ये कन्वर्सेशन शुरू हुआ है कि उसका ध्यान रखने के लिए कोई घर पे नहीं है एंड नैनी इज नॉट डूइंग ए वेरी गुड जॉब अबाउट इट, शी सडनली कम्स इन बिटवीन एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट एंड शी गिव्स अ प्रॉपर कमेंटरी कि द काइंड ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस वांट्स सपोज टू बी हैविंग एट दैट पॉइंट, और द काइंड ऑफ जो सीन के अल्टीरियर मोटिव है, जो सबटेक्स्ट है एंड ऑल दिस थिंग्स, the girl starts talking about it. So she breaks down the scene and everything, and she talks about it. And probably जाने से पहले she asked the ultimate question: should my mom leave this job or quit this job? What should she do? So this kind of things, sir, Brixton. अभी तक आपको ऐसा लग सकता है कि what is the excellence part of acting in it? We are going there. Hold. ठीक है. So this whole Wolfram Dunks effect was used to direct audience's attention to something new. This was done by getting the scene started and then doing something unexpected. When the rhythm is interrupted, audience stops getting lost in the emotion, story, and characters. Instead, we are constantly reminded that these actors communicating ideas and situations to us. Plays were performed with the house lights on so that audience members remained aware of each other during the performance. House light goes off to give you a sense of isolation. So, us isolation ko bhi breaks sometimes breaks it up by just keeping the house lights on. Music and dancing were used to break up the action of the play or scenes with sung rather than spoken. Before this, songs in between performance, dance in between performance was not a common phenomenon. Brecht introduced it with a very different purpose rather than the purpose nowadays it's used. Okay. Nowadays used to enhance your emotion, enhance your involvement, but Brecht actually wanted it to disrupt your emotional flow or
make you a rather more active audience rather than a passive audience. The logic behind it was the dialogue has a rhythm in it. So suddenly bringing something much more fast rhythmic, slow rhythmic, and the melodious something, uh, it breaks. Okay. Uh, Now suddenly think about the film Interstellar or Dunkirk or any of the Nolan film, the serious ones. Any of the serious film. अगर इंटरस्टेलर के बीच में suddenly they start singing a song, be it about Interstellar only. I'm not talking about like at random something starts to sing in between. Be it about Interstellar only, but आप देखेंगे कि the film is made in a way you feel like that a song doesn't fit anywhere. But then, if a song suddenly starts appearing and keeps on talking about what the interstellar wants to talk about, then also you will feel some kind of detachment from it. So, ये जो social commentary है and all these things, these were put to music. ठीक है? Some dialogues or some scenes completely converted into music and song and dance. Okay, so that you don't get to enjoy the seriousness of it, rather than it becomes melodious and you get to experience a change of pace in between. Okay, the dialogue, the music, dialogue, the music, dialogue, music, dialogue, music, dialogue, music. Placards were used to give information to the audience. Another one, like in between scenes, placards are moving, and the placards is written things. It might be some question, it might be a commentary, it might be a dialogue that जिनको dialogue देना था, वो actor dialogue दे ही नहीं रहा है, and there is this placard in front of the actor written the dialogue जो उसको देना था, ठीक है? All of the characters might be dressed in black rather than individually costumed. जो मैं थोड़ी देर पहले अपैरल की बात कर रहा था इन रिगार्डिंग द टीचर कॉन्टेक्स्ट that if with the bare minimum indication of me being a teacher and I enter the room wearing a bermuda, then what will happen? That kind of distancing is what Brecht is trying to achieve, that characters might be dressed in black rather than individually costumes. What did it mean for the actor? Brecht believed that actor's job was merely to show what happened. He did not want actors to identify the character or to play the role realistically, which was the opposite of Stanislavski's purpose. ये ब्रेक्स ने बोल दिया कि एक्टर का काम है ओनली टू शो जो हो रहा है एंड वेरी मैकेनिकली, बिकॉज ही डजंट वांट एक्टर्स टू आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स ऑल द प्ले द रोल रियलिस्टिकली. तो स्टानिस्लावस्की करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम वापस थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस वर्क्स, करना क्या चाहते हैं. ब्रेक्स्ट कह रहा है कि ये जो डिस्टेंसिंग है एक्टर्स को करना चाहिए, ये डिस्टेंसिंग एक्टर कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं. पहले तो उन्होंने ये जो अभी तक हमने बात की, ऑल दिस टेक्निक्स, टूल्स और डिवाइसेस फॉर डिस्टेंसिंग, दिस केम इनटू माइंड. ठीक है, this came into mind. Now, while achieving this, Brecht, for the very first time, noticed that ये जो distancing, ये जो belief है, the slide is there, yes, where Brecht is saying that he did not want actors to identify with the character or play the role realistically. So actors were not identifying the character, but उससे problem क्या हुआ, पहली बात कि उस वजह से the actors were not believable. एंटरटेनमेंट क्वोशेंट की तो खत्म हो गया ही गया है, बट मैसेज कन्वे करने के लिए, मॉरल्स कन्वे करने के लिए जो बेयर मिनिमम कन्विक्शन चाहिए, दैट बेयर मिनिमम कन्विक्शन वाज आल्सो मिसिंग.
because at that point actors were very much accustomed to naturalistic and realistic style of acting, and they only understand to be able to achieve the truth of it. So the point they were asked to not to do it, they did not know what else to do. So they did a shitty acting, ganda acting किया उन्होंने. Because of that ganda acting, bad characterization, all of with all this distancing effect, now by default the acting is bad, so obviously the audience is not at all engaged or not at all enjoying the performance. Now in between this distancing and all these things were introduced as a part of nuisance. It was a disturbance. But Rex was rigid to it, that these are the ways that it can be achieved. So what can be done? So then he started approaching to the actors training, that how the actors should be trained so that they can achieve this distancing craftfully, smartly, and with conviction. यहाँ पे जाके समझ में आएगा कि हाउ ब्रेक्सटियन एक्टिंग टेक्निक इज मच मोर टफ देन the earlier two जो हमने बात किया Stanislavski and Chekhov, like the involved ones. Brecht said that first, because you need to switch between your characters in split seconds. जो switch on, switch off, switch on, switch off, switch on, switch off करते हैं. Brechtian techniques was one of the first method of such style. That switch on, switch off. The lady moving the pen or having an intense argument with her husband suddenly gets out of the character and start doing commentary that the lady Savitri or Sita is going over there and making tea for her husband and like warming up the milk for girl child, and then again back to the character. अब मान लो कि heightened emotion achieve होने के बाद, after achieving this much heightened emotion, one actor is getting out of the character and he is getting into the character at that intense level, because now he doesn't have the opportunity to do the gradual progression of emotion, because that scene is part is already done and he's on stage. He has not taken exit that he will do some kind of but individual ritual or something to get into it and do some psychological thing. He's there on stage. On stage, he's coming out of it and getting into it in that heightened emotion. This is one of the example, like on a very superficial example. There can be 1,000 more crucial moments where coming out of it is much, much more tough and getting into it is much tougher, as you can understand very easily. So Brecht wanted actors to achieve that. And to achieve that, Brecht ने सबसे पहले बोला, do one thing. You are accustomed with the realistic part of it, naturalistic acting. Let's do the intellectual preparation first. Okay. He, at one side, he kept on doing the. Can you see what I'm showing? Like the slide is visible. Some technical glitch happened on my side. Is it visible? The slide is visible? Yes, sir. Okay, then it's a technical glitch on my end only. It's done. Okay. So yes, so side by side, he does this intensive scene by scene analysis with the actors because he wanted to deal the script as a political tool. The whole ensemble is the collective, the whole group analyzes the text not just for story or emotion, but rather to see what it reveals about class, power, oppression, or ideology, whatever it is. Scene by scene analysis, the social contradiction, what kind of behavior is in question, what is the character is saying, and all these things. And then actors were tasked with come up with some historical and socio-political context of the play, research real life parallels to the character. Okay,
this one part that they used to do with the director Brecht, and then this in a way helping them to prepare the given circumstances also. And then Brecht says that he achieve your truth, like start achieving your truth in whatever method you are accustomed to. So the actor first achieves the truth with all the psychological gesture, physical action, subtext, non-action, all these things. So they make the whole characterization with the whole thing, and then after they achieve the truth completely, the characterization is done. Then Brecht says, very interesting thing, he says that now come to the floor. Okay, come to the floor and do this. What? Now he says that कि the very first exercise कि आप अपने डायलॉग को बहुत स्लोली बोलिए. कि मान लीजिए आपका डायलॉग है कोई भी 3-4 लाइन का डायलॉग है, लाइक वट एवर इज रिटन इन द चैट बॉक्स, लाइक डिजाइन टू डायडेक्टिक मीन्स डिजाइन टू टीच पीपल समथिंग स्पेशली इन मॉरल लेसन एंड टू ट्रांसफॉर्म द ऑडियंस फ्रॉम पैसिव ऑब्जर्वर्स. जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात करूँ, लाइक वी आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन हियर, फाइन. So this is the normal pace of me, like the character talks in this pace, so supposedly like this. Brecht is suggesting कि इसको slow कर दो पूरा and try to hold the truth of the character. Didactic, designed to teach people. Might sound funny, but what it does is that it creates a terrible, extreme internal turmoil in the actor. Because at one end, he is trying to hold the truth of the character, and on the other end, he is not doing something completely random. He is taking the dialogues that helped him to achieve the truth, but the dialogue's rhythm is opposing the process. Because the character's rhythm is not this slow. फर्स्ट जब उन्होंने स्लो अचीव किया, मतलब स्लो का एक्सरसाइजेस हो गया, देन ही सेज दैट कि मेक इट फास्टर एकदम, बट अगेन होल्ड द ट्रुथ. जो मूवमेंट अचीव किया है, जो एक्शन अचीव किया है, वो सारे एक्शन भी करने हैं. कि अगर आपको डिजाइन टू टीच पीपल समथिंग स्पेशली ए मॉरल लेसन बोल के पानी पीना है, वो आपको पीना है स्लोली. मॉरल लेसन टू ट्रांसफॉर्म द actions are all there, movement are all there, like the way you supposed to move, you move. The way you supposed to change space, you change space. The way you supposed to take exit, you take exit. The way you supposed to enter, you enter. Just it's slow. The dialogues are slow, and then it fast. You do everything fast, but the action is there. Okay, जहां जहां एक्शन है उधर आपको एक्शन करना पड़ेगा. सो एट वन पॉइंट द एक्शन, जो फिजिकल एक्शन से हम साइकोलॉजिकल अचीवमेंट की बात कर रहे थे, इमोशन को एनहांस करने की बात कर रहे थे, एक्सप्रेशन को एनहांस करने की बात कर रहे थे, दैट इज वन. सो इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर हैपनिंग इन बिटवीन द एक्टर. उसके बाद क्या हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स इवेंचुअली क्या कर रहा है कि एक्टर के ट्रूथ को, कॉन्विक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है. किस तरीके से? बिकॉज नाउ द ट्रूथ दैट यू आर सपोजिटली अचीव्ड इज गोइंग थ्रू ए लिटमस टेस्ट. ये एक तरीके का अग्नि परीक्षा है एक्टर के लिए, टू मेंटेन द ट्रूथ एंड गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड. उससे आपके अंदर का जो कोर है, आपका जो साइकी है, उसमें आपके कैरेक्टर के लिए कॉन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है दैट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैन नॉट टेक यू अवे फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ योर कैरेक्टर. यू ओन योर कैरेक्टर. एट दैट पॉइंट ब्रेक सेज कि नाउ यू ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग. देखो क्या हो रहा है.
little bit of distancing was achieved after these exercises. ठीक है? Any question so far? No, sir. Anyone else? यस सर. Yes. हेलो सर. एम आई ऑडिबल? बोलो. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन दो वजहों से है. हम्म. अगर बर्टोल्ट ब्रेक्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये थिएटर है या जो ये केवल एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, यह हम लोगों में ये क्वेश्चन डाल सकते हैं समाज में हो क्या रहा है इस बीच, कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब मोरली एथिकली जो भी है वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं अपनी लाइफ के प्रति, राइट? वो कह रहे हैं कि जो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनसे एस्केप मत कीजिए, आप उनको सॉल्यूशन कीजिए या फिर आप उनको रिजॉल्व कीजिए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं. तो वो सीधा जो एक्टर है थिएटर के बीच में या अपने नाटक के बीच में सीधा ऑडियंस को वो कर दे, तो इतनी सारी चीज कर क्यों रहा है वो? क्या इससे एक्टर को एक बेटर एक्टर बनने में हेल्प होगी? बैड एक्टर बनने में? एक बेटर एक्टर बनने में हेल्प होगी? और क्या ये हाँ, जो मैं क्रिएट, वही तो कह रहा हूँ कि सॉरी सर, eventually सॉरी with सर, all this process they were more close to the truth. और क्या अगर मैं कोई ऐसा प्ले देखने जाऊंगा बार बार तो मैं खुद बोरिंग नहीं हो जाऊंगा ऐसे नाटक को देख करके, जो मुझसे मतलब क्या ये नाटक इंटरेस्टिंग होते होंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे. अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होते होंगे, अगर वो फंक्शनिंग नहीं होते होंगे, तो आज इतने सालों बाद भी ब्रेक्स रेलेवेंट तो नहीं होंगे, नहीं होते. आज हम 4 जुलाई 2025 को बैठ के अ, एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर प्ले राइट थी डायरेक्टर को क्यों पढ़ रहे होते, है ना? मतलब ये बहुत आसान सा. एक्चुअली सर मैंने ऐसा कोई नाटक देखा नहीं है इसीलिए पूछ रहा था. अच्छा, ठीक है. देखिए, आज होता है ना बहुत, पर प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ एपिक थिएटर बोल के एक ग्रैंड नैरेटिव और डिस्टेंस को ही फोकस में रखते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि इस डिस्टेंसिंग को अचीव करने के लिए उसके अल्टीरियर मोटिव को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कि जस्ट बिकॉज आई कैन डू इट, कि पढ़ाते पढ़ाते सडनली इधर से छमक छल्लो गाना बजा दिया, दिस इज नॉट Brechtian distancing. This is not alienation. But आजकल there's a misunderstanding about it कि this is also an alienation effect. This is not, because this won't affect any of your psyche. You will just get distracted for a moment, and then when I will again start talking about the topic, and you will be probably get again engaged to the topic. बीच में एक चमक चलो बजा बजा बजा, ठीक है. But if you are supposed to question it, matlab, if there was something was about to happen here, like dealing with an issue or something like that, that you are supposed to question or you were to think about, then the distancing or the alienation has to be done in a way that purpose is achieved. Then it's the Brechtian epic theater. Then it's an alienation effect. Then it's the distancing. Otherwise, it's not. आपने तो खैर देखा ही नहीं, पर आप बाकी अगर आपने दोनों किसी ने नाटक देखा होगा, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दैट्स हाउ इट मोस्टली वर्क्स. ज्यादातर जगह पे एलिनेशन के नाम पे यही करते हैं. ऑब्वियसली देयर आर बेटर एग्जांपल्स आल्सो, आप देखेंगे तो आपको वो भी देखने को मिलेगा. तो ये होने के बाद ब्रेक्स्ट क्या करते हैं, जब उन्होंने छोटे लेवल पे एलिनेशन एंड उसको अचीव किया, ब्रेक्स्ट सेड दैट कि लेट्स अचीव दिस नाउ ऑन ए बिगर लेवल. बिगर लेवल में जाने के लिए विथ दिस स्लो pace and the fast pace thing was already in motion, but along with it he also included that suddenly the character should the actor should come out of the character and talk about the characterization, talk about the character that he is doing, the commentary part of it, and then again go back to it. So like distancing के टाइम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है. उसके साथ साथ जो कर रहा है, इट्स कॉल्ड जस्टिस. ठीक है.
इधर अभी हम पढ़ लेते कि Brecht believed that the actor should move as if blocking movements on stage for the first time or in a robotic dreamlike way. Treat voice and movement so that they do not match. Speak as if quoting someone else rather than speaking dialogue. Speak the stage directions aloud. Remain physically and emotionally detached from other actors. Play scenes with mismatched emotion, for example, humor in a sad scene. Perform directly to the audience. Exchange role with other actors. Perform the role as if critically appraising the actions from afar. Now, these are a collection of things that Brecht believed that the actor should be able to do. But to do this, maintaining the truth, uh, उसके लिए all these exercises was used to done. One of these was gestures. Now, what is gestures? Gestures का meaning लोग बोलते हैं कि gesture पर ये gesture नहीं है, ठीक है? इसके बारे में बहुत सारी बात हुई है. It says that it's not gesture. ठीक है. It says that it's a combination of gesture, posture, tone and context. आप लोगों ने मीसोसीन पढ़ा होगा और the different components of a scene that eventually consists the whole scene. मीसोसीन ये मीसोसीन की तरह है. इट्स कॉम्बाइंड जेस्चर, पोस्चर, टोन एंड कॉन्टेक्स्ट. मीसोसीन तो खैर काफी बड़े पैमाने पे बात हो रही है, बट दिस इज ऑन एक छोटे पैमाने पे that it gives characters attitude in a given situation. ठीक है. हाउ जेस्टर्स इज बेसिकली, बहुत लिटरली देखा जाए तो स्मॉल जेस्टर ही है, पर उसको नॉट जेस्टर बोल के इसलिए बार रेफर करते हैं बिकॉज यू आर सपोज टू इंक्लूड gesture, posture, tone and the context to it because it's supposed to reveal something. ठीक है. जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जस्टिस का, like someone is saying something and then you raise your eyebrows. This is justice. ठीक है. And then you say something, the tone or probably you do some vocal sound and you can do this. So this tone, gesture, posture, all these things comes together and this can be example of justice. Okay. Now justice करने से क्या होगा? जस्टिस करने से ब्रेक्स्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच बीच में हमने क्या बात किया था इससे पहले भी, that the non-action part of it is actually giving you the psyche of the character. Brecht thinks that the justice gives a psyche of the character. And to approach the psyche, जब तक आपको कैरेक्टर का साइकी पकड़ में नहीं आएगा तब तक तो आप ट्रूथ अचीव कर नहीं सकते. और अगर आप साइकी को कॉन्स्टेंटली होल्ड पे नहीं रखा तो भी प्रॉब्लम है. कैसे प्रॉब्लम है? तो फिर द होल थिंग बिकम्स इररिलेवेंट टू द ऑडियंस. ऑडियंस वोंट बी एबल टू कनेक्ट टू इट. जो बैड एक्टिंग को हटाने के लिए ब्रेक्स्ट इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना. तो ये सारे के चक्कर में जो चेकऑफ बोल रहा है कि द साइलेंस ऑफ इट, द नॉन एक्शन ऑफ इट, Brecht is saying the same thing in a slightly different way, saying that gestures that with all the non-action you should include little bit of gesture to it, some small physical movement to it that shows some conflict, some it shows something about your psyche. ठीक है. ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. फाइन. डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑडियंस, कमेंटरी, नरेशन, क्वेश्चन टू द व्यूअर्स, ये भी हो गया. यूज ऑफ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक. ये हमेशा याद रखिए कि मैंने बोला है ऑलरेडी, बट यूज ऑफ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इन ब्रेक्स्टियन टेक्निक, यस, इट्स नॉट सपोज टू अंडरस्कोर इमोशन. जो आज के टाइम पे इट्स नॉट बीजीएम, इट्स सपोज टू इंटरप्ट. ओके. एक मैं म्यूजिक का एग्जांपल देता हूँ ब्रेक्स्टियन टेक्निक पे. मान लीजिए कि मदर करेज, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज दिस सन, माँ का बेटा जो है, ही इज डाइंग. आप मान लीजिए कि ऐसे ही सीन है, कोई भी रैंडम सुपरफिशियल एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है
कि देयर इज दिस मदर जिसका बेटा मर रहा है, उसकी गोद में है, और पूरा इंटेंस सीन है, ठीक है। अब वो क्यों मरा है, व्हाट आर द एक्सप्लॉइटेशन, सोशल इशू, वो सब में हम नहीं जा रहे डिटेल में, होगा कुछ तो होगा, फॉर सम रीजन ही डाइड, फाइन। और उस इंटेंस मोमेंट में जहां पे माँ पहले सिसक सिसक के रोती है, पहले हल्के मतलब आंसू बहते हैं, और एक पॉइंट पे व्हेन द मदर फील्स लाइक टू गिव इट ए कंप्लीट गो, कि खुल के चिल्लाना, और उस मोमेंट द मॉम ऐसे खुल के चिल्लाती ही है, और रोने की आवाज के बदले बैंड पार्टी की आवाज आती है, और इधर से एक आर्मी बैंड मार्च करते हुए जा रहे हैं, आर्मी का मार्च पास्ट चालू है ग्राउंड पे, और माँ का क्राई जो है वो साइलेंट क्राई रह जाता है। और वो जो मान लेते कि अगर युद्ध में वो लड़का मारा गया है, वार फ्रंट में, बैटल फ्रंट पे मारा गया है, तो एंड द आर्मी इज मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ इट, so after a point, the mom goes to the backdrop, and the army marching with the army band is comes to the forefront of it. This is a breasting thing. This completely takes out of it, but then also pushes you to think, "Ki what just happened? Why I couldn't hear the mom cry out loud?" The mom, obviously, as an actor, the mom did not cry out loud. It was a silent cry. But as an actor, you were perceiving that the March Army Band disrupted the mom's emotion, your emotion, and you couldn't hear the mom's cry because you wanted to. At that intense moment, you were ready to jump into the mom's pain, mom's suffering, but then the Army Band completely takes you out of it. But this time, when it takes you out of it, it's not an irritation. It might be an irritation in a way, but the irritation is actually to question the whole thing, that why it happened, why it happened, why it happened. And if the army killed the boy, then this whole contrast and juxtaposition of it creates a huge question in the audience's mind. ये एग्जांपल आया क्या समझ में? दिस इज ए बेटर एग्जांपल, आई थिंक, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए हैं. सर आया. यस. ओके, सो इट हैज टू बी कॉन्ट्रास्ट विद द एक्शन, और फिर नैरेटिव रिदम, ये सब करके. एक आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको इसके मतलब आप लोगों को मिले ना मिले, कि वन ऑफ द कंपोजर जो ब्रेक्स्ट के इस मेथड पे काम करने के लिए म्यूजिक कंपोज करते थे, ही वाज कार्ट व्हील, जो थ्री पिनी ओपेरा में ब्रेक्स्ट के साथ काम किया है ऑलरेडी, ठीक है. Another way Brecht used to approach the actor was that कि after you achieve all these things, इस पॉइंट तक आते आते the actors are already quite there. They able to manage a lot of distancing, lot of disruption, and still get into the character and hold the truth firmly. At this point, Brecht started playing on a rigorous level. He's saying that let's divide the plane units. Again, the Stanislavskian technique. Dividing it in units and bits. But now Brecht is saying that now while we are dividing in units and bits, let's make some super objective of bigger units. Let's divide the play in episodes. मान लेते हैं कि let's assume that one particular act is divided into 6-7 episodes. Then he shuffles the episodes. आजकल जैसे हम we are very much used to watching non-linear performances. Like past is coming to the present, present is going far in the future. It's all timeline हो जाता है. But we can connect the dots. Which में there was this series called Kaleidoscope in Netflix, which you could watch in any order you want. It's like any order makes some sense to it. It's the same action happening in a real timeline of it, but the way you watch it gives you a different kind of perception to it. But you are watching the same incident. उसमें कुछ alchemy नहीं है, उसमें कुछ magic नहीं है. You understand the same chain of events that happened, but the perception becomes different because you are enjoying, you are watching it in a very different way, whatever way you want. So Brecht says that कि अब इसको एपिसोड को reshuffle कर दो.
Like if a play has 10 episodes, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, then play it in any order: 3, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 8, 10, whatever it is. Bring the end in the beginning. So now Brecht is challenging the character arc that you have built in your mind. अभी तक वो आपके ट्रूथ को, आपके कॉन्विक्शन को क्वेश्चन कर रहा था, मतलब चैलेंज कर रहा था, आपके कॉन्विक्शन को लिटमस टेस्ट में डाल रहा था. नाउ ही इज पुटिंग योर कैरेक्टर आर्क इनटू लिटमस टेस्ट, दैट हाउ यू show the gradual progression of the character, because the climax scene comes in the beginning. So you start with an intense climax scene, and then suddenly the whole emotion comes down because the next scene is completely randomized and different, which probably the beginning scenes jahan pe you are like very calm and composed and entering into the character and building it up. So the shuffling of the episodes question completely the character arc, and eventually, because now they also understood what actually Brecht wanted. So holding on to the truth and not getting rid of the conviction was the challenge, but they achieved it also. The episodic, fragmented episodic structure. उसके बाद, after all these things, Brecht says that the actor is not an impersonator. ये impersonation है ना, that we are trying to impersonate another character. But Brecht says that actor is always a demonstrator. Actor should show a character and never ever become a character. ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ब्रेक्स तब बोल रहा है जब उसके कैरेक्टर ऑलरेडी कैरेक्टर अचीव कर चुके हैं, बट ही इज नॉट giving this instruction to the character for the sake of their acting. He is giving these instructions, this set of instructions to the actor for the sake of the audience, because resultant effect matters. और resultant effect को कॉन्क्रीट करने के लिए एक्टर को ट्रूथ अचीव करना बहुत जरूरी था, नहीं तो इतने सारे डिसरप्शन एक्टर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, एंड इट यूज्ड टू लुक लाइक बैड एक्टिंग. तो अभी बैड एक्टिंग और रहा ही नहीं. With all this disruption and all these rehearsal techniques, all the actors are super confident. Like now they can just go away, do anything, come back and get into the character and do a fantastic acting of it. So switch on, switch off becomes very easy for them. At that point, Brecht saying that after you achieve everything, then you should realize that you are a demonstrator, not an impersonator. You are showing a character. Like you are a hanger, you wear some clothes, and that's how it is. Actor should maintain in the third phase. Like pehle phase mein the analysis and the achieving truth part is done. The second phase where the distancing part is practiced and achieved. In the third part where the actors are realizing that to maintain a critical distance from the role, so the performance becomes a demonstration of behavior and not immersion. Very, very important thing whenever you want to explain. It's a demonstration of behavior. It's not chain of events. For actor, they are just showing a set of behavioral gestures. This is from where Brecht get the idea of gestures. कि आप बहुत सारे gestures ही exhibit कर रहे हैं basically. And by the showcasing of all these gestures, the audience is understanding whatever they want to understand. So as a demonstrator, this is what you are demonstrating. But with all conviction and truth. जब जब आप कैरेक्टर में है तब तब आपको ट्रूथ का ध्यान रखना ही पड़ेगा. जब जब आप कैरेक्टर में नहीं है तब तब आप निकल के आ जाएंगे. ये एक्टर के लिए ही समझने की बात है कि मुझे रैंडमाइज करते आना चाहिए, मुझे कभी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करते आना चाहिए, मुझे कैरेक्टर से निकल के फट से कैरेक्टर में वापस जाना आना चाहिए. Audience will always understand the resultant effect. They have nothing to do with the truth of the character or how the actors achieve the truth of it or whether or not they achieved it and how the alienation works or anything. They are supposed to enjoy the resultant effect, that they
understand the performance, they also enjoy the performance in a way and still able to consciously grasp what was said all through this 1 hour, 2 hours, the duration, throughout the duration of it. One major thing, Brecht always wanted that at any point, because इतने सारे disruptive method की वजह से, at any point, if there is a problem with emoting, voice clarity or clarity is much more important than emotion. Words are more important. बिकॉज वर्ड्स आर रिटन इन वे, ये भी एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रेक्स यूज टू राइट प्लेस, ही वाज अ प्ले राइट, तो ही यूज टू राइट प्लेस ऑल्सो इन अ वे दैट फिट्स इनटू हिज स्टाइल ऑफ डायरेक्शन, हिज स्टाइल ऑफ एक्टिंग एंड ऑल. तो जब वो बोल रहा है कि ये पूरा जो चीज हो रहा है इसमें वोकल स्टाइल में क्लैरिटी ओवर इमोशन, ठीक है, आपको इमोशन से पहले वॉइस क्लैरिटी पे ध्यान देना है, और इमोशन की भी एक क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं. पहली तो बात है कि थ्रू रिहर्सल यू शुड बी एबल टू अचीव इट, बट इफ सम पॉइंट एट सम पॉइंट यू आर नॉट बीइंग एबल टू, बट एटलीस्ट यू शुड हैव क्लैरिटी, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी तो एटलीस्ट इट विल समहाउ won't cheat the audience. Audience will be able to connect to it somehow. ठीक है. जो बहुत डेफिनेटली ब्रेक्स्ट मना करता है, टू नॉट डू एनीथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल रियलिज्म. Avoid psychological realism always. क्यों? Because Brecht thinks that it's not only about the audience getting involved, it's also about the actor. If you are trying to approach psychological realism in any way, your involvement with the character all get attached to your personal side, the actor's side. And getting out of that psychological realism is not an easy thing to do. सो जिससे निकलना ही बहुत मुश्किल है, टाइम टेकिंग है उसके, उस अप्रोच के साथ तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. सो ब्रेक्ट सेज दैट कि अचीव योर ट्रूथ इन वॉट एवर वे पॉसिबल, बट एटलीस्ट डोंट अप्रोच साइकोलॉजिकल रियलिज्म. देयर आर मे बी अदर वेज, एंड अदर वेज बोल के ब्रेक्ट यूज्ड टू रेफर टू स्टानिस्लावस्की ओनली मोस्टली, because the kind of initial analysis and research Brecht used to do along with his actors, it was mostly a beginning to the Stanislavskian system. ठीक है. हो गया. Any question? Any question so far? नहीं सर, अभी नहीं है. Okay. So eventually, the effect of the whole thing from Brecht's point of view was to have a political education, the built-in political education, address moral issues, social, and then revisit everything. Brecht says that whatever you are doing, revisit it, keep questioning everything. So you don't have to do the same thing twice ever in the performance. Always try to look for new things. Always question and change it, question and change it, question and change it, so that your truth remains fresh. Emotional memory की तो उस तरीके से बात ही नहीं है, but it should remain fresh. The acting should remain fresh. So every time you find a physical action, you should find a new purpose to it. So every time you find a new purpose, you मतलब as an actor you have a tendency to approach it and the struggle behind to achieve it made it look fresh, because the ease जो हम बात कर रहे हैं कि जो दिमाग में ease आ जाता है कि now it's very organic and you are just doing it, so sometimes आपका conscious mind काम करना बंद कर देता है, और जो अगर conscious mind काम करना बंद कर दिया तो the moment you are supposed to snap out of the character मिस हो जाएगा.
तो ऑलवेज ऑन एज रहने के लिए ब्रेक्स्ट का ये एक टेक्निक था, टू रिविजिट एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग एंड कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स, डोंट फिक्स थिंग्स। ऐसे ये बहुत ऑब्वियस नहीं है कि चेंज करना ही पड़ेगा, बट ऑलवेज यू शुड ट्राई टू गेट इनटू इट। मेजर ब्रेक्सटियन नाटक के बारे में अगर आपको लिखना पड़ेगा तो मदर करेज इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर वन इज थ्रीपेनी ओपेरा, लाइफ ऑफ गैलीलियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। फिर ब्रेक्स्ट से जो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मेजर इन्फ्लुएंस वाज बोअल्स थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट, ऑगस्टो बोअल। If you are writing about Brecht, make sure you write about it. सर That प्लीज he, राइट राइट ऑन। this is one of the major influence, Boas Theatre of Oppressed, and then another major influence was on uh, Peter Brook. Peter Brook का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। And Indian Agitprop Theatre. ठीक है। अगर सिनेमा में आपको ब्रेक्सटियन टेक्निक देखना है तो आप जॉन लुक गॉदर के सिनेमा देखिए, उसमें काफी सारे रप्चरिंग मोमेंट्स हैं, देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा वेरी इजीली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्रिटिसिज्म अबाउट इट। क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि इट रिक्वायर्स वेरी मच हाई डिसिप्लिन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर स्टानिस्लावस्कियन सिस्टम में काम करना ही इतना प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, आई शुड नॉट से प्रॉब्लम, इतना टाइम टेकिंग एंड टेक्सिंग है, उसके साथ साथ अगर आपको एक बार ट्रूथ अचीव करने के बाद अगर उससे डिटैच करना भी प्रैक्टिस करना पड़े, सो किस तरीके की डिसिप्लिन आपको चाहिए। ठीक है, दैट वाज वन थिंग। एंड एक है कि थोड़ा पॉलिटिकल हेवी टोन के वजह से इमोशनल एंगेजमेंट कभी कभी कम हो जाता है ऑडियंस का, कि अगर पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रहा तो इमोशनल एंगेजमेंट ओवरऑल कम हो जाता है। जो ब्रेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑडियंस को एकदम एंटरटेन नहीं करना है या एंजॉय नहीं करना है, ऐसा नहीं है, करना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ अवेयरनेस भी रखनी चाहिए। पर उस अवेयरनेस के चलते कभी कभी एंटरटेनमेंट फैक्टर या एंजॉयमेंट फैक्टर या इन्वॉल्वमेंट फैक्टर कभी कभी लिमिटेड हो भी सकता है। ठीक है, उसके लिए खास ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अनदर थिंग इज दैट कि ये इंटेलेक्चुअली थोड़ा डिस्टेंट लगता है, कि बिकॉज एवरीथिंग हैज सम पर्पस इन इट, एंड एक अल्टीरियर मोटिव इज देयर इन एवरी वे, तो ऐसा थोड़ा इंटेलेक्चुअली कोल्ड ऐसा लग सकता है कि मैकेनिकल और समथिंग, पर दीज आर वेरी लूजली सपोर्टेड क्रिटिसिज्म, उसके पक्ष में ही, फेवर में ही ज्यादातर चीजें हैं। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आई ऑल्सो पर्सनली लाइक वेरी मच ब्रेक्सटियन टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। ऑगस्टो बोएल का इन्फ्लुएंस बता दिया, पीटर ब्रूक बता दिया, इंडियन पैरेलल थिएटर बता दिया। इंडियन पैरेलल थिएटर में जो थर्ड थिएटर की बात कर रहे हैं, ये तो बादल सरकार का है ही, उसके अलावा भी आप देखेंगे हबीब तनवीर, उत्पल दत्त, सफदर हाशमी, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस ये ऐसा काम। फासबेंडर एक और फिल्म मेकर है जो ब्रेक्सटियन टेक्निक पे काम करता है। लार्स वन ट्रियर के काम में भी कुछ कुछ दिखता है। शैम बेनेकल, गोविंद निहालनी के काम पे भी ब्रेक्सटियन फेवर कुछ कुछ दिखता है, पर गॉदर, फासबेंडर, लार्स वन ट्रियर में तो दिखता ही है बहुत ज्यादा। एडवांटेजेस एक तरीके से, मतलब ऐसे प्रोज कॉन्स बनाना है तो प्रोज में आप देखिए क्या बना सकते हैं, कल मुझे बताइए कि आपने क्या क्या प्रोज लगता है इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, overall this whole Bertolt Brecht
एक्टिंग टेक्निक इट रिमेन्स एक तरीके से कॉर्नरस्टोन है, क्योंकि इस तरीके से एक्टिंग को अप्रोच करने का, परफॉर्मेंस को अप्रोच करने के लिए इससे पहले कभी नहीं किसी ने नहीं सोचा. So in case of experimental theater, experimental performance, it became a cornerstone all over the world. He kind of empowered theater to speak the truth. He showed that theater is the power where you are not only supposed show the goody goody stuff, but also shows what is rotten in the society and what's wrong in the society, and you can show it in a very impactful and effective way. Okay, and for actors, it's not just about playing a role, obviously, but it it's more about like knowing what your role says about the world. That's why you are the demonstrator. That's why you are just demonstrating the behaviors. Okay. So overall, Brechtian theater technique जो भी है, it's a tool for reflection and transformation basically. Fine. It's a counterpoint to realism and very strong counterpoint to realism. But realism में भी मतलब realistic setup में भी ब्रेक्सटियन नाटक हुए हैं और उसमें भी ब्रेक्सटियन टेक्निक इस्तेमाल किया गया है. But because the acting approach में realism को hard and fast follow नहीं किया जाता, it's a very good counterpoint to realism. And जिस तरीके की rigorous training के through actors जाते हैं, it really helps them to get a huge solid conviction of their truth in a very what should I say, that you not only get hold of your emotional being but rather get hold of the control over your expressions also, your body. ये पूरा जो tools है acting के, ये सारे में आपको बहुत ज्यादा hold मिलता है. Yes, सांची. सर, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने श्याम बेनेगल और उत्पल दत्त का नाम लिया था, तो आप इनके वर्क्स बता सकते हैं क्या देखने चाहिए ब्रेक के टेक्निक्स देखने के लिए? उत्पल दत्त के तो नाटक देखने पड़ेंगे जो मिलना. देखिए यूट्यूब में कितने मिलेंगे, आर्काइव्ड हैं, मतलब सीन्स तो मिलेंगे ही जो आपको थिएटर इंडिया करके जो जब्बर पटेल का फिल्म, जब्बर पटेल जी की फिल्म है, उसमें देखने को मिल जाएगा. श्याम बेनेगल जी की मूवीज देखिए ना, कोई भी देखिए उठा के, देखिए ना ब्रेक्सटियन टेक्निक कैसा है. इट नीड नॉट टू बी ऑन ए वेरी लाउड एंड वोकल करके भी होना ऐसा जरूरी नहीं है. द मोमेंट व्हेन कि सपोज दो लोग बात कर रहे हैं और इधर कैमरा है और मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन, और ओवर द शोल्डर शॉट, जो जिस तरीके भी शॉट आप सोच सकते हैं. तो मैं इधर बात कर रहा हूँ एंड स्क्रीन इधर है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, और मैं सडनली, ये कैमरा है बिकॉज यू आर द ऑडियंस हियर, हाँ, और मैं अपने को एक्टर की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, एंड देन सडनली आई लुक एट द कैमरा एंड आई स्टार्ट टॉकिंग. ऐसे तो बहुत 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 होते हैं. जो एक बहुत मेजरली इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके पूरे सीरीज को उन्होंने आगे खींच लिया. दैट वाज हाउस ऑफ कार्ड्स. हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है किसी ने? वंडरफुल एक्टिंग. हाँ, देखिए आप लोग, नहीं देखा है तो. उसमें द प्रोटैगनिस्ट कॉन्स्टेंटली स्पीक्स ऑन टॉकिंग टू द कैमरा एंड यू फील लाइक यू आर वन ऑफ हिज कॉन्फिडेंट, कि आपको ही उसके बारे में सारी बातें पता है. एंड आफ्टर अ पॉइंट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंस. मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, बट आफ्टर अ पॉइंट जो आपको लग रहा है कि ये आपका और उसका सीक्रेट है, दैट ही इज टॉकिंग टू यू, उसको ब्रेक करके अनदर कैरेक्टर एंटर्स इनटू एंड ही इज सेइंग दैट कि तुमको क्या लगा, आई डोंट नो दैट यू नोज एवरीथिंग, एंड ही यूज्ड टू टॉक टू यू, एंड दैट कम्स एज अ शॉकिंग मोमेंट टू इट कि how this happened. Obviously, it's a craft of filmmaking the way it made, but yes, this slightest twitch of it also is a Brechtian technique to it, that where you are coming out of it and still in the character. But it can be done in multiple other ways also, because in this scene that I'm talking about, House of Cards, उसमें वो character नहीं छोड़ता है, character में रह के ही तुमसे बात करता है. But there will be other examples where the actor might be coming out of the character. I'm not naming as such एकदम fix श्याम बेनेगल की कोई फिल्म, पर आप लोग देखिए. आप लोगों ने कौन सी देखी है श्याम बेनेगल की फिल्म? देखी है आप लोगों ने?
शाम बेनेगल की तो अभी नहीं देखी है। एक भी नहीं देखी है? सर अगर देखी होगी तो मुझे पता नहीं कि उनके डायरेक्टर श्याम बेनेगल ही होंगे। सर श्याम बेनेगल तो पैरेलल मूवी में बहुत ज्यादा फेमस है ना शायद। हाँ जी। उनकी मूवी शायद बहुत अच्छी भी रहती थी। उनकी देखनी है मुझे दो तीन। फिल्म देखिए आरोहन। आरोप पता नहीं, बहुत पहले मैंने पुरानी मूवी तो बहुत देखी है बट याद नहीं आ रहा। तो जुबैदा देखी है मैंने। ओके ओके, आरोहन देखिए। श्याम ठीक है। बेनेगल की है ना सर? हाँ जी। ओके ठीक। I am concluding the class. Brecht died at the age of 54. He fled Nazi Germany, lived as a scriptwriter in Hollywood in the 1940s. In his will, he requested to be buried in a lead-lined coffin with a stiletto hill through his heart. Theater artists are weirdos, but pretty clever. But he revolutionized theater and turned it into a tool for looking at the big issues that affect us all. He made it possible for theater to make a difference. Nothing very important here, but yes, 1940 at the age of 54, Bertolt Brecht died. So yes, that was all about Brecht. Okay, I will try to send you the film by Sunday, and tomorrow we will be talking about. Tomorrow we will be talking about. सर माइजनर करवा दीजिए। Tomorrow we will be talking about Strasbourg. Meisner will do on Tuesday. ओके। Tomorrow we are doing Strasbourg. Okay. चलिए, anything else? Any question? Or else it's a good night. Okay, चलिए. All have a very good night. Tata, bye bye. हेलो सर। Yes. किसने हेलो सर बोला? प्रशांत। हाँ जी, बोलिए. एक्चुअली जब आप बात कर रहे थे फोर्थ वॉल ब्रेक करने के बारे में, तब हम्म. मुझे एक लूज एग्जांपल आ रहा था दिमाग में। वो था एक फिल्म है सर, मुझसे शादी करोगी। उसमें Okay. जो दुग्गल साहब हैं, उसमें ऐसा आता रहता है बार बार, फोर्थ वॉल ब्रेक होती रहती है। आज दुग्गल साहब ये बने हैं, आज दुग्गल साहब अंधे बने हैं, आज दुग्गल साहब ये बने हैं। तो डायरेक्टली वो ऑडियंस को वो करता है। I don't remember मुझसे शादी करोगी उतना. देखा तो है शायद मैंने. But yes, if you can recognize moments, it's fine. क्योंकि All good. मतलब बेसिकली फोर्थ वॉल ब्रेक करना, राइट। चलिए. Thank you so